theta minus 1 whole square. Well, what is the identity of tan square theta in terms of sec square theta? Sec square theta minus theta है ना? No, this can be written as sec square theta minus 1 divided by sec theta minus 1 whole square. ठीक है, रीजन क्या दोगे? सिंस 1 प्लस tan square theta equal sec square. This is the identity. Now here you will see a square minus b square. This is equal to a minus b, a plus b. So this way we written as sec theta minus 1 sec theta plus 1 divided by sec theta minus 1 whole square. Sec theta minus 1 whole square, sec theta minus 1 whole square, one time cancel out from this. Then this is equal to sec theta plus 1 divided by sec theta minus 1. ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, जस्ट कन्वर्ट सेक थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा, because you know sec theta is the reverse of cos थीटा. ठीक है, sec theta cos थीटा का रिवर्स होता है. तो जस्ट राइट हियर sec theta is 1 अपॉन cos theta plus 1 divided by 1 upon cos theta minus 1. Take the LCM. If you are taking LCM, this is equal to 1 plus cos theta divided by cos theta and plus 1 minus cos theta divided by cos theta. ये स्टेप समझ में आ रहा है ना? एलसीएम लेते हैं और टोटल एलसीएम का डिवाइड भी कर देते हैं. तो cos थीटा कैंसिल आउट, देन योर आंसर इज 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा व्हिच इज RHS. एंड नेक्स्ट a plus b whole square and a minus b whole square. ठीक है, a plus b whole square means अक्षरा शुक्ला. Tell me 1 plus tan a whole square equal. No, I am asking 1 plus tan a whole square. 1 square plus You are doing something now, other. 1 plus tan square a plus 2 tan a, and the next 1 minus tan a whole square equal 1 plus tan square a 1 plus tan square a minus 2 tan a. ठीक है, just we have taken here LHS. I have applied a plus b whole square and a minus b whole square. Minus and plus same cancel out. देखो 1 plus 1 this is equal to 2 plus tan square a 2 tan square a. Now what is common? 2 is common. Remaining is 1 plus here tan square a. You know what is identity tan square a? Sec square a. So this is equal to sec square a. So is the question, but this was from board, so it is important. LHS tan square theta minus sin square
theta. बोलो tan theta is sin theta upon cos theta. So this can also be written as sin square theta upon cos square theta minus sin square लिख सकते हैं, ठीक है ना। I have written only tan theta equals sin theta upon cos theta. But take LCM here, take common sin square theta from these two, ठीक है। इनमें से sin square theta कॉमन ले लेंगे। sin square theta taking common, तो here is 1 upon cos square theta minus and minus how much 1 because we have taken sin square theta, ठीक है। यहाँ पे sin square theta कॉमन लेंगे, 1 बचेगा डिवाइडेड बाय cos square theta और ये टोटल कॉमन आएगा, यहाँ से 1 बचेगा। sin square theta इक्वल ब्रैकेट 1 अपॉन cos square theta माइनस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज sin square theta and ब्रैकेट 1 minus बोलो 1 minus cos square theta. cos square theta 1 minus cos square theta divided by Cos square theta. cos square, ठीक है। What is identity of this one? Sin square theta. sin square theta. तो the next step में आप लिख सकते हो sin square theta into Sin square theta. sin square theta divided by Cos square. cos square theta. Which is tan. Now see sin square theta upon cos square theta equal tan square theta. So sin square theta into tan square theta and this is equal to ठीक है। So it is 15 फर्स्ट पार्ट ट्राई कर लिया सबका, आगे सेकंड पार्ट प्रॉब्लम आ रही है बता। 1 माइनस tan थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ये है ना। देखो पहले आप इसको चेंज करो, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन, ठीक है। और इस टर्म को sin स्क्वायर थीटा अभी स्क्वायर ही रखेंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अपोजिट। अब cos थीटा विल गो एंड मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर भी है, ठीक है। cos थीटा इनटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और ये बचेगा कितना cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा, ठीक है। माइनस इधर से देखो, ये तो जरूरत ही नहीं पड़ा, हम इसको ध्यान ही नहीं दिए, तो यही सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको रहने दो, इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर इज सेम, तो एलसीएम और न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली विल सब्ट्रैक्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin, ठीक है। अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin। अब ऑटोमेटिकली विल कैंसिल आउट,
So the remainings are cos theta plus sin theta, and this is equal to RHS. I think this was okay. Theta and tan theta समझना क्वेश्चन को। अगर आपको RHS से L लगाते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब आपके ऊपर है कि आप सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा के टर्म में LHS से सॉल्व करते हो या RHS से tan थीटा और cot थीटा को सेक और कोसेक के टर्म में लिखते, ठीक है। आइडेंटिटी यही यूज होगी, कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं यूज होगा। चलो हम RHS से देखते हैं, LHS आता ही नहीं है, ठीक है। RHS क्या है? cot to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta. बोलो, cot to the power 4 theta can be written as cot square theta की whole cot square theta whole square minus tan square theta whole square। इसीलिए लिया है ताकि आपको दिख जाएगा यहाँ से कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? a प्लस b और a माइनस, ठीक है, तो लिखते हैं and in the second part cot square theta minus tan square theta, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b। अब क्या करेंगे? cot स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में चेंज कर देंगे और tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर। बोलो, cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? sec square theta माइनस थोड़ा सा काफी लेंदी हो गया, सॉरी। cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, यस, ठीक है ना। यस, ये क्योंकि देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, वो माइनस 1 को प्लस कर देगा, यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 बाकी कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आपके पास है, और ये मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई का टर्म है, जहां मल्टीप्लाई करोगे वहां पे स्क्वायर टर्म का जो मल्टीप्लाई आएगा वो पावर 4 में देगा आपको आंसर, ठीक है। नोट डाउन। This is equal to cosec to the power 4 थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई करें, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का आएगा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, that is equal to minus sec to the power
ठीक है, देखो cosec स्क्वायर थीटा इनटू cosec cosec टू द पावर 4 थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इनटू माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इनटू माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा, क्योंकि प्लस माइनस का तो मल्टीप्लाई बताइए कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस। अब बचा -2 का मल्टीप्लाई, -2 cosec स्क्वायर थीटा और -2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा -2 cosec स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। What is cancelling here? These two, because these are equal and opposite. So the remaining are, देखो जैसे लिखा है ऐसे लिख रहे हैं, 2 sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर माइनस sec टू द पावर 4 थीटा, ये ठीक है, और बाकी ये जो टर्म आ गया इधर -2 cosec स्क्वायर थीटा दिस टर्म एंड देन प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा एंड दिस इज योर LHS, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू, ठीक है, लिया ही था इसीलिए कि आपको आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का दिख जाए और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखो 1 माइनस वो भी सेम सही है तो सेम इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, पर पाई करोगे तो आई थिंक 1/1 माइनस 1 प्लस cos है ना, तो सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो टर्म इधर का सिंप्लीफाई करने का, ठीक है ना, स्टेप थोड़ा सा बढ़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस cos A डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 1 माइनस cos A है, 1 माइनस cos A, the same term is, so you may write 1 minus cos A whole square, or what is A plus B, A minus B, A square minus B square, so this is 1 minus cos square A। अब the next term देखो ये पूरा होल स्क्वायर है, स्क्वायर में तो बाहर आ जाएगा 1 minus cos A divided by, and 1 minus cos square equal sin square, और स्क्वायर रूट के अंदर है sin A, simply this one is cos square, ये आपको मिल जाएगा sin A। Now divide, one thing is here also, once again देखो हाँ, ये अभी आपको यहाँ पे जो RHS प्रूव करना है sin A upon 1 plus cos A, तो once again you will multiply here by 1 plus cos A by 1 plus cos A, एक बार और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक बार और मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 1 plus cos A डिवाइडेड बाय 1 plus मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। अब ये 1 A minus B, A plus B, this is equal to A square minus B square, total divided by sin A 1 plus cos A, ठीक है, बोलो 1 minus cos square equal sin square A, so this is equal to sin square A divided by sin A into 1 plus cos A, sin square A, sin A कैंसिल आउट होगा 1 टाइम, ये मिलेगा sin A divided by 1 plus cos A
एंड दिस इज इक्वल टू RHS। अब आपको मिलेगा दिस इज R। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 में मिलेंगे।